Hello everyone, so welcome to your own channel. In this video we will talk about Starlink. I hope you might have heard this word before. So in this video we will discuss what is Starlink, how does it work, has Starlink reached in India or not, and what are the views of NASA about Starlink. So let's see. So first point is Starlink is a constellation of satellites operated by SpaceX providing satellite internet access coverage to 50 countries. What does it mean? Starlink is a project of SpaceX company. SpaceX company, I hope all of you are aware of SpaceX. It is a company founded by Elon Musk which builds and launches rockets and spacecraft. उसी का ही एक project है Starlink. Starlink के अंडर constellation of satellites means number of satellites were launched in space. Purpose क्या है? To provide satellite internet access coverage. Yes, जो इंटरनेट हम एक्सेस कर रहे थे अभी थ्रू केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स, वो अब हमें कैसे मिलेगा? थ्रू सैटेलाइट. एंड सैटेलाइट विल यूज अ रेडियो सिग्नल टू ट्रांसमिट द डेटा थ्रू द वैक्यूम. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 50 कंट्रीज. 50 कंट्रीज में ऑलरेडी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, राइट. एंड दीज 50 कंट्रीज इंक्लूड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. And you might have heard that it also provided its services to the Ukraine during the war of Russia and Ukraine, right? Free services was there. I hope it is clear. Now it aims for global internet coverage. उसका अभी 50 countries ही है, but उसका aim क्या है? पूरे globe को internet coverage देना, right? Now the second point, SpaceX started, और ये कब शुरू हुआ? SpaceX started launching Starlink satellites in 2019. कब लॉन्च करना शुरू कर दिया ये सैटेलाइट्स को? 2019 में. और Feb 2023 तक Starlink ने कितनी सैटेलाइट लॉन्च की? 3580. So many satellites have already launched by SpaceX under Starlink project. तो and these satellites were launched in low Earth orbit. 550 किलोमीटर ओनली, यानी कि अर्थ सरफेस से 550 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सब सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई हैं. कितनी घूम रही हैं अर्थ के चारों ओर? 3580 अराउंड. फाइन. एंड दीज सैटेलाइट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू लेजर बीम. और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसीलिए इतने ग्राउंड स्टेशंस की भी जरूरत नहीं है अर्थ पर. आपस में ये लेजर लाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट. अभी तक इतनी सैटेलाइट लॉन्च हुई है. प्लान कितने का है? 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का. सी, एंड दीज आर द स्मॉल सैटेलाइट. बड़े बड़ी सैटेलाइट्स नहीं है, स्मॉल साइज की ही सैटेलाइट्स हैं, राइट. एंड व्हाट अबाउट द स्पीड? इट ऑफर्स हाई स्पीड ऑफ 150 Mbps से लेके 500 Mbps तक इसका स्पीड है. Such a high speed, isn't it? And it is ideally suited for rural and geographically isolated area. तो मेन बेनिफिट, हम सबको बेनिफिट है, अच्छा इंटरनेट मिलेगा, हाई स्पीड का मिलेगा, ठीक है, और उसमें लैगिंग नहीं होगा. बट जो मेन बेनिफिट है किसको मिलेगा? रूरल एंड जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया, जो हिली एरियाज पे हैं, जहाँ आपकी केबल्स गई ही नहीं है, इंटरनेट है ही नहीं है, और रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा. I hope you have understood the concept of Starlink. Now we will see, has Starlink entered in India or not? In 2021, Elon Musk started pre-booking in India without taking permission from government of India. Yes, Elon Musk started pre-booking and they approached the Indian customers directly without taking the India's government permission, and they started collecting money also from them. But immediately our India's government took the strict action and asked them to stop the booking and returned all the money to the Indian customers. Fine. And they asked them to take the license first or to take the permission first, then only you can start your booking. In 2022, it applied for government permission and not received permission yet. After almost 1 year of this incident, they applied for government permission and they have not received permission yet. उनको अभी तक permission नहीं मिली है. तो Starlink अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है,
Okay, now if you think that Starlink is the only contender in this space race, you are wrong. There are other companies also, and this is not a new technology to access the internet from the satellite. It is it has been existing, I think, from decades, right? So it's not a new technology. And which companies are already there in this space race? First one is, these three are Indian companies only. OneWeb, भारती ग्रुप का है OneWeb, जियो का है JSCL लिमिटेड, टाटा का है टेलीसेट. These three are Indian companies which are already in this field, satellite internet access, and other companies like Viasat, HughesNet and Amazon. Now we will see, if so many competitors were already there, then why Starlink is getting so much appreciation, why everybody is talking about Starlink. So how Starlink different from competitors? First point is, instead of using couple of large satellites, Starlink uses thousands of small satellites. Starlink ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लार्ज सैटेलाइट, जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने लार्ज साइज की सैटेलाइट्स लॉन्च की और कपल ऑफ सैटेलाइट, इतनी लार्ज अमाउंट में सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया, बट स्टारलिंक ने स्मॉल सैटेलाइट का यूज़ किया और कितनी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स दे हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड. फर्स्ट थिंग, we will see what is the advantage of these small satellites and so many satellites. And the second point is, Starlink uses LEO satellites that circle the earth at only 550 km from the surface level. Second thing, Starlink ने क्या किया कि जो भी satellites launch की हैं, कितनी height पे की हैं? 550 km. That is the low earth orbit, right? And other companies या other competitors ने कितनी, most of them have launched at the height of 36,000 km. एंड एट 36,000 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. क्यों करते हैं 36,000 किलोमीटर पे? सी, इस केस में इफ़ यू आर लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर, स्पीड ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट विल बी सेम. ठीक है, अब इससे कम में करेंगे तो क्या होगा? अगर सैटेलाइट्स, कपल ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ओनली 4-5 सैटेलाइट्स यू हैव लॉन्च्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट. सपोज आपने 500 किलोमीटर में 4-5 सैटेलाइट ही लॉन्च किए हैं, तो उस केस में क्या होगा? जैसे सपोज एक यूज़र है आपका, तो यहाँ से सैटेलाइट आई, उसको एक्सेस मिला, ठीक है. अब इन दोनों का स्पीड, अर्थ का स्पीड और सैटेलाइट का स्पीड मैच नहीं करेगा, तो ये यूज़र को क्रॉस कर जाएगा. ठीक है, अगर सैटेलाइट कम होगा तो दूसरा सैटेलाइट काफ़ी देर के बाद इसके पास पहुंचेगा, तो इंटरनेट आपका लैगिंग होगा या बीच में आएगा ही नहीं. ठीक है, तो उस केस में क्या है, अगर लो ऑर्बिट में करना है तो आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ाना होगा, ताकि जैसे ही ये सैटेलाइट इस यूज़र को क्रॉस कर गया तो दूसरा सैटेलाइट उसकी रेंज में आ जाए. ठीक है, अगर लो अर्थ ऑर्बिट में करना है तो वही स्टारलिंक ने किया. स्टारलिंक ने नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च किए. अब एक यूज़र को ये सैटेलाइट क्रॉस करेगा तो आपका दूसरा सैटेलाइट एंटर कर जाएगा. ठीक है, तो उसको कोई लैग नहीं आएगा और स्पीड भी ज़्यादा होगा. अब देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे अगर करेंगे तो डेटा को सेंड करने और रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा, उससे लैग आएगा आपका, है ना. बट ये 550 किलोमीटर में आपका टाइम कम लगेगा, तो ये इस केस में हम बोलते हैं लेटेंसी कम होगा. लेटेंसी मीन्स टाइम टेकन बाय द डेटा पैकेट्स टू रीच फ्रॉम वन डेजिग्नेटेड पॉइंट टू अनदर. डेटा पैकेट्स को, डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको लेटेंसी लेटेंसी बोलते हैं. तो लेटेंसी का स्पेलिंग है LATENCY. ठीक है, तो लेटेंसी अगर हाइट ज़्यादा पे लॉन्च किया होगा तो ज़्यादा होगा, अगर हाइट कम पे लॉन्च किया है तो टाइम कम लगेगा. जितना टाइम इसको एक राउंड ट्रिप में लगेगा उतने ही टाइम में ये 70 टाइम्स राउंड ट्रिप लेगा. मतलब डेटा एक बार यहाँ गया फिर वापस आया, जितना टाइम लगा सेम टाइम में अगर स्टारलिंक सैटेलाइट है 70 टाइम्स उसका डेटा सेंड और रिसीव हो जाएगा. इतना फास्ट है एज कम्पेयर टू द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. नो डाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का लार्ज कवरेज होगा बट लैगिंग ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा.
isn't it? और उससे कम में नहीं कर सकते, उससे कम में करेंगे तो आपका नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इंक्रीज करना होगा, अदरवाइज एक उसको क्रॉस करेगा फिर अगला कब आएगा उसके पास, isn't it? उसका स्पीड मैच नहीं करेगा, सैटेलाइट फास्ट चलेगा और आपका अर्थ धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्पेस स्टारलिंक project or Starlink satellite. So this will improve the internet speed and reduces the latency. I hope it is clear. Latency इस केस में ज़्यादा होगा, इस केस में रिड्यूस हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगा। Starlink has the advantage of being part of SpaceX which can launch Starlink satellites regularly. अब इतना सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है रेगुलरली, कैसे कर रहा है? क्योंकि उसका ही कंपनी है स्पेसएक्स, है ना? तो स्पेसएक्स क्या करता है? रॉकेट्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च भी करता है, बनाता भी है। तो ये क्या कर रहा है? इजीली आपका स्पेसएक्स से लॉन्च करता जा रहा है। बट अदर कॉम्पिटिटर्स का कॉस्ट फैक्टर है, हाई कॉस्ट फैक्टर, वो इतना सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं कर सकते रेगुलरली, नहीं बनवा सकते, ठीक है? तो यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर आ जाता है। सो ये बेनिफिट है स्पेसएक्स का ही प्रोजेक्ट होने का, स्टारलिंक का। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर, हाउ स्टारलिंक डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, राइट? सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द व्यूज ऑफ नासा ऑन स्टारलिंक। नासा का क्या व्यूज है? नासा इज नॉट हैप्पी विद दिस प्लान, इट इशूज अ वार्निंग अबाउट स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट। उसने एक वार्निंग इशू किया है स्टारलिंक सैटेलाइट्स को। अर्थ्स ऑर्बिट इज गेटिंग क्राउडेड, नासा का कहना है कि अर्थ का ऑर्बिट क्राउडेड होता जा रहा है। इट विल इंक्रीज द स्पेस डेब्रिस, इससे स्पेस डेब्रिस भी इंक्रीज करेगा। स्पेस डेब्रिस कैसे इंक्रीज करेगा? कुछ सैटेलाइट्स कोलाइड कर गया या वर्क करना बंद हो गया, बट रहेगा तो स्पेस में, तो बे मतलब का डेब्रिस बढ़ेगा। क्योंकि ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, स्पेस में सैटेलाइट्स तो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, तो ऑलरेडी कितना सारा सैटेलाइट्स पहले भी होगा, और इतना लार्ज अमाउंट में सैटेलाइट्स एकदम से लॉन्च कर देना ऑब्वियसली विल इंक्रीज द स्पेस डेब्रिस। Although SpaceX claims its satellites automated collision avoidance system which eliminate the possibility of collision, but NASA disputes this claim and said collisions are not totally avoidable. क्या कह रहे हैं कि SpaceX ने क्लेम किया है कि उसकी सैटेलाइट्स में ऑटोमेटेड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, मीन्स उसमें कोई भी चीज़ सामने आएगी अगर सैटेलाइट्स के, वो अपना पाथ चेंज कर देगा या कुछ भी करेगा, बट कोलिजन नहीं होने देगा। उसमें क्या है? ऑलरेडी ऑटोमेटेड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा हुआ है जिससे कोलिजन नहीं होगा। बट नासा क्या बोलता है? नासा डिस्प्यूट्स दिस क्लेम एंड सेड कोलिजन्स आर नॉट टोटली अवॉइडेबल। इतना सारा क्राउडेड में कोलिजन पूरी तरह से अवॉइडेबल नहीं हो सकता। Satellite could block views of space and earth and it will hamper the research work. Satellite, NASA का कहना है कि इतनी सारी satellites will block the views of space and earth and it will hamper the research work. See, these are the views of NASA on Starlink. बट हैरानी की बात है, एक आदमी ने पूरी अर्थ को अपनी सैटेलाइट से कवर कर रखा है और करने जा रहा है, और भी सैटेलाइट्स बढ़ेगा, बट नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। वो शायद इसलिए कि ये आदमी नॉट अ नॉर्मल मैन, इलॉन मस्क है, और वो भी यूएसए का। इंडिया का होता या किसी और कंट्री का होता, मे बी कुछ ना कुछ अभी तक तहलका हो गया होता, इजंट इट? सो एनीवेज, सो आई थिंक इट कैन रेज द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। पूरा अर्थ को अपनी सैटेलाइट से कवर कर लेना एक आदमी ने, अभी तक nobody is talking about the any security issues, but there are possibility of security issues also in future. Anyways, I hope you have understood the concept of Starlink. क्या होता है Starlink, कैसे काम करता है, how Starlink is different from other competitors, and what are the views of NASA on Starlink. So that's it in this video. Thanks for watching.